हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सतीश कुमार गुप्ता, आपका मैथ्स मेंटोर। आर टुडेज टॉपिक इज डिवीजन। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, you need to know about dividend, divisor, quotient and remainder. Okay, so to understand it, let's take an example. If you divide 8 by 3, so for that, first of all, you have to recite the table of 3. So 3 2 ja 6, and you subtract it, so you will get 2. Okay, so in this, 8 is dividend, 3 is divisor, 2 is quotient, and this 2 is remainder. Okay, ये जो अंदर लिखा हुआ होता है that is dividend, it's a divisor, that's a quotient, and it's a remainder. And the relation between these four terms is dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Okay, if you put all these values in this equation, it will satisfy. Okay, like dividend is 8, divisor is 3, quotient is 2, plus remainder is 2. Let's keep it in your mind that ये जो पार्ट यहाँ जो आता है उसको क्वेश्चन कहते हैं, इधर जो रिमेनिंग होता है उसे रिमाइंडर कहते हैं. ओके, इफ यू सॉल्व इट, 3 2 जा 6 and 6 plus 2 is 8. Okay, so just keep it in your mind and cram this relation, that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Okay, one more question is 894 divided by 7. Actually, I have noticed that students makes lots of mistake in division, so that's why I'm taking some more example to make you understand. So my next question is 894 divided by 7. Okay, so how to solve this question? First of all, you will recite the table of 7. Okay, कितनी बार बोलनी है टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक फर्स्ट डिजिट, दैट इज 8. ओके, अब 8, तो पहला तो ये है कि जो नंबर 8 है वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, यदि कम होता है तो एक डिजिट और लेनी पड़ेंगी, वो अपन अगले एग्जाम्पल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो ओके, नाउ यू विल टेक 8. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिसाइट द टेबल ऑफ 7. 7 1 जा 7, एंड चूज अ नंबर. कितने टाइम्स टेबल बोलनी है? इतनी टाइम्स बोलनी है कि आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है जो कि 8 से जस्ट लेस है, जस्ट छोटा है. तो 7 1 जा 7, you will write 7 at here and subtract it. By this you will get 1. When you subtract 7 from 8, so you will get 1. And now what we'll do? Bring down 9. Bring down 9. Okay. Again, you will recite the table of 7. So 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21. Because 21 is more than 19, that's why we will take 7 2 ja 14. So you will write 2 at here and 7 2 ja 14 and subtract it again, and you will get 5. Okay, again bring down 4. Again we will recite the table of 7. So 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21, 7 4 ja 28, 7 5 ja 35, 7 6 ja 42, and 7 7 ja 49. 7 7 ja 49, because 7 8 ja 56 and 56 is more than 54, that's why we will take 7 7 ja 49 and subtract it. By this you will get 5 as a result. Okay, so in this question 894 is dividend, 7 is divisor, 127 is quotient, and 5 is
रिमाइंडर. ओके, ये एक इजी वन क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था. तो वी कैन से दैट सेकेंड एंड थर्ड क्लास तक लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. तो ओके, दैट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. 8157 divided by 9. Okay, in this question, first of all you will recite the table of 9 and we will take first digit 8, but 8 is less than 9, that's why we will take one more digit. हम इस पूरे नंबर को दो डिजिट्स का एक नंबर पूरा एक साथ लेंगे. Now we will recite the table of 9. तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81. wait, and subtract it, so 0. Okay, then you will bring down 5, but 5 is less than 9. in that case, ऐसे केस में क्या करना है? in that case you have to take one more digit. आपको एक डिजिट और लेनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आप डिजिट्स को यहाँ पे ले सकते हैं. इन फॉर दैट इफ यू वांट टू टेक वन मोर डिजिट 7, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस 0 एट हियर. 0 प्लेस करेंगे, उसी के बाद आप एक डिजिट और ले सकते हैं. ओके, so you have to take. Now you again we will recite the table of 9. 9 6 ja 54, subtract it, so you will get 3. It gives us 3 as remainder. Okay, so in this question this is dividend, this is divisor, quotient and remainder. Okay, तो यहाँ पर मैंने एक नई चीज़ आपको समझाई कि यदि आपने जैसे 5 इसको ब्रिंग डाउन किया, यदि आप इसके साथ एक डिजिट और लेना चाहते हैं, तो इन दैट केस फॉर दैट केस यू हैव टू प्लेस 0 एट हियर, देन यू कैन डू इट. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दिस. ओके, in this question you have to divide 80,115 by 16. so first of all 8 छोटा है 16 से, that's why we will take 2 digit 80. okay, so first recite the table of 16. so 16 5 ja 80. for division just keep it in your mind and you have to cram tables. okay, so 16 5 ja 80 and 80 minus 80's remainder is 0. now we will bring down 1, but 1 16 से छोटा है, दैट्स वाई डिवाइड नहीं होगा, तो हमें एक डिजिट और लेनी पड़ेगी. बट मैंने आपको समझाया था कि इफ़ यू वांट टू टेक वन मोर डिजिट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस 0 एट हियर. आप इधर 0 प्लेस करेंगे, एक डिजिट और ले लेंगे. बट अगेन 11 जो है वो 16 से डिविजिबल नहीं है. इन दैट केस यू हैव टू टेक वन मोर डिजिट. यदि अवेलेबल है तो लेना है. तो यदि आप 5 को भी लेते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू प्लेस 0 एट हियर एंड यू कैन डू इट. ओके, नाउ यू विल स्पीक आउट द टेबल ऑफ 16. तो 16 7 जा 112 and subtract it, so you will get 3 as remainder. okay, तो बेसिकली आपको एक डिजिट तो आप सिंपल ले सकते हैं, बट एक से ज़्यादा डिजिट आपको लेनी है. तो फर्स्ट यू विल प्लेस 0 एट हियर. जैसे मैंने 1 लिया, 1 के साथ मुझे एक 1 और चाहिए था, तो मैंने एक 0 प्लेस किया, बट अभी भी 11 डिविजिबल नहीं है. तो फॉर दैट केस वी हैव टू टेक वन मोर डिजिट 5, बट उसके लिए क्या करना है, एक 0 पहले प्लेस करना है एंड आप 5 ले सकते हैं. फिर अगेन यू विल रिसाइट द टेबल ऑफ 16. 16 7 जा 112 एंड सब्ट्रैक्ट इट. ओके, दिस इज डिविडेंड, divisor, quotient and remainder. okay, let's take one more example of it. look, only basically इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आज हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3913 डिवाइडेड बाय 17. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसाइट द टेबल ऑफ 17. 17 2 जा 34. ओके, अच्छा यहाँ पर एक बेसिक प्रॉब्लम बच्चों को ये भी आती है कि सर 17 1 जा 17 क्यों नहीं लिया. मैंने आपसे बोला कि जस्ट लेस देन नंबर लेना है 39 से. तो 39 से छोटा 17 है. यस डेफिनेटली 17 1 जा 17 इज लेस देन 39, बट जस्ट लेस नहीं है. तो 17 2 जा 34 उससे क्या जस्ट लेस देन इन द टेबल ऑफ 17. 17 की टेबल में जो 34 है वो 39 से जस्ट लेस देन है, दैट्स वाई वी विल टेक 17 2 जा 34 एंड सब्ट्रैक्ट इट. तो 5 9 minus 4 5 and now
we will bring down 1. Okay, 17 3s are 51. Subtract it. So now again we will bring down 3. बट 3 17 से छोटा है और आगे कोई डिजिट भी नहीं है. ऐसे केस में, इन दैट केस, हमेशा यदि लास्ट में एक डिजिट आपके पास रिमेनिंग है, बचती है और वो डिवाइड नहीं होती है, तो आपको हमेशा 0 प्लेस करना है. जस्ट कीप इट इन योर माइंड. ओके, लास्ट में एक डिजिट आपके पास रिमेनिंग है और वो 17 से डिविजिबल नहीं है. इन दैट, फॉर दैट केस आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, लिखेंगे, लिख नहीं सकते, लिखेंगे, और यहाँ पर हमेशा 0 प्लेस करेंगे. ओके